Hello, viewers. Welcome to Leading with Impact, a podcast by CSR Times where we bring you conversations with leaders who are shaping the future of corporate social responsibility and sustainable impact. Today, I have the pleasure of welcoming Mr. Vijay Kamble a second time onto our show. The first time, it was very well received, and by popular demand, we have invited him to come back and address our audience. Vijay Kamble is a seasoned CSR professional with extensive experience in driving meaningful social initiatives and creating lasting community impact. His journey and inputs into the evolving CSR landscape promise to make this an inspiring and thought-provoking conversation. Mr. Kamble, welcome back to the show. Thank you, madam, for this interaction and for this discussion. And we are very happy to connect with you. We are very happy to connect and share with our experience and our learning with your platform and with your team. Thank you, madam. Yes, our viewers had a couple of questions based on the last interaction, which I have tried to key in today's podcast. So we'll begin with what we normally always do and which our viewers always like to listen to. That is the beginning of your journey, where in a very short, crisp manner, because I know you've spent a lot of time in CSR, you've spent decades in creating social impact. So could you just introduce yourself for those who missed out on this last time and tell us a little about your CSR journey so far? Thank you, madam. I started my journey in development sector in 1996 from Tata Institute of Social Sciences. I completed master from TISS and I started to work as a professional in development sector. At the beginning, I started work with various NGOs, various community-based organizations in Mumbai and across Maharashtra. Then I shifted to myself as a CSR professional with the Ambuja Cement Foundation. It was my turning point towards going to the CSR domain, and I work with the JSW Steel, I work with the AVH Chemicals, and presently I am with the Birla Corporation Limited. So I have 24 years of sound experience in development sector with the various corporate, with the various NGO, with the various community-based organization. It was my journey from the 96 to 2006. 2026. I have been associated with the development sector. Coming back to your work experience, I'm sure you must have had a lot of programs and initiatives which have been successful. But can you tell us something about one initiative which was very close to your heart, if you can, choose from so many that you've done? Anything which was very close to your heart, and how did you achieve that, the success of that initiative? Thank you. In my journey, I work with the various area, various sectors, various issues. But one subject or one project which I would love to share, that is the working with the physical handicapped people. So this was the significant project we have started, and by this project we have initiated so many beautiful livelihoods program for the person with a disability. And by this project we supported them for the micro enterprises, we supported them for the shops opening, we supported for the two-wheeler repairing shops and grocery shops. So these are the project. It was quite alarming for my understanding, my learning, as well as I see so many drastic changes happen in their life also. So this was the project. It is very close to me because I realized that this small support, small initiative can tremendously impacted on their family and their personal life also. This was the one project I would love to share, madam. Okay, that's very interesting. अब विजय जी, मुझे आपसे एक और सवाल, बहुत जो यहाँ पर
लोगों के दिमाग में है, और ये काफ़ी समय ऐसा होता है कि हमारा सीएसआर लैंडस्केप तो काफ़ी इवॉल्व हो चुका है, पर अभी भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां पे सीएसआर को सिर्फ एक चेक बॉक्स या कंप्लायंस जैसा हम मानते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आपकी क्या राय है, और आप क्या उन्हें एडवाइस दे सकते हैं जिससे कि वो उसे अपनी स्ट्रेटेजिक बिजनेस एडवांटेज जैसा उसे लें, न कि सिर्फ एक चेक बॉक्स या कंप्लायंस इशू? थैंक यू मैडम फॉर दिस ये सब्जेक्ट के लिए या क्वेश्चन के लिए। ये बहुत ही क्रुशल और सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट है इन टर्म्स और कॉर्पोरेट में, कि सीएसआर सिर्फ वो चेक बॉक्स का ही दिशा से देखा जाता है। लेकिन हम उनको, या जो मैनेजमेंट है उनको, हम लोग ये बहुत क्लियरली और बहुत ही स्पष्टता से बताने की कोशिश करेंगे कि सीएसआर एक बिजनेस है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस है, कि सीएसआर के सिवा बिजनेस में कोई बात नहीं है। तो सीएसआर को बिजनेस पार्ट करके उसको जितना भी आप एंगेज करेंगे, क्योंकि ये इमेज बिल्डिंग का मेन सोर्स है सीएसआर। सो जो प्रोडक्टिविटी है, या जो सेल्स है, या जो भी सपोर्ट सिस्टम है बिजनेस के लिए, वो सिर्फ सीएसआर क्रिएट कर सकता है और कर रहा है। अदरवाइज इशू, अलग अलग इशू को इंडस्ट्री को फेस करना पड़ता है। आप देख रहे हैं टाटा के इशू जो वेस्ट बंगाल में हुए, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के कुछ इंडस्ट्रीज के इश्यूज जो फेस कर रहे हैं। और जो इंडस्ट्री ने एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट इनिशिएटिव, वो लोगों ने सीएसआर के टीम को या सीएसआर के प्रोजेक्ट को एंगेज करना चालू किया या शुरुआत ही करी, तो उनके प्रोडक्शन या उनके सेल्स में काफी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। तो सीएसआर ये बिजनेस का पार्ट है, ना कि कोई बाहर की एंटिटी है। ये मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट करने की काफी आवश्यकता है। तो आप इस बात से सहमत हैं कि मैनेजमेंट को भी उतना ही इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए जितना कि बाकी लोगों को? तो एक टॉप डाउन अप्रोच होना चाहिए कि मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व हो। आप इस बात से सहमत हैं? यस मैडम, डेफिनेटली, क्योंकि मैनेजमेंट ऑलमोस्ट ऑल द डिसीजंस हैज बीन टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट। Even if the management is engaged with the entire decision making process in terms of the development sector या CSR के प्रोजेक्ट है, सो वो हमको या CSR की प्रोस्पेक्टिव से वो काफ़ी फायदे का होता है। क्योंकि क्या हो रहा है कि कंपनी जब ट्रांसमिशन फेज में होती है या चेंजेस होता है, तो कम्युनिटी भी उसको ऑब्जर्व करती है कि क्या हो रहा है। एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री को टेक ओवर कर रही है, या चेंजेस हो रहे हैं, या मैनेजमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, तो कम्युनिटी भी ऑलमोस्ट देखती है कि क्या कंपनी के अंदर होता है, तो उसके इम्प्रेशंस कम्युनिटी लेती है। तो इसके लिए मैनेजमेंट को जितना एंगेज हो गई सीएसआर प्लानिंग प्रोग्राम में, उतना ही वो ज़्यादा अच्छी तरह से हम लोग सीएसआर भी कर पाएंगे, और प्रोडक्शन भी कर पाएंगे, सेल भी कर पाएंगे, और अपना इमेज बिल्डिंग भी सीएसआर से हो जाता है। थैंक यू। तो बहुत अच्छी बात आपने कही। लीडरशिप टीम्स को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए सीएसआर या सोशल इम्पैक्ट इनिशिएटिव के लिए? एक दो कुछ ऐसी चीजें आप बता सकते हैं जो लीडरशिप टीम्स को ध्यान में रखनी चाहिए? डेफिनेटली मैडम, ये लीडरशिप टीम जो है वो मोस्ट प्रोबेबली वो सब सिस्टम को लीड करती है, जाके सिस्टम आगे जाके उसको ग्राउंड में रियलिटी में लेके आए। लीडरशिप को एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे है, हम बताना चाहिए कि जो नीड असेसमेंट होती है, जो एक्चुअली नीड लोगों की या एक्चुअली कम्युनिटी की नीड है, तो उसको जाके एक्चुअली देखना ये काफी महत्वपूर्ण होता है। और इस दिशा में उसको एक जो सिस्टम है, सिस्टम सेटअप करना बहुत ही आवश्यकता होता है। जो प्रोजेक्ट हम डिजाइन करते हैं और जो प्रोजेक्ट एक्चुअली ग्राउंड में पेपर से लेके ग्राउंड में जब उतरता है, उसका इम्पैक्ट एक्चुअली क्या हुआ है, उसको समझने के लिए एक सेटअप या मैकेनिज्म या कोई मैट्रिक्स कंपनी ने सेटअप की करते हैं। तो उसके लिए वो लीडर उसका जिम्मेदार है, और लीडर ने वो चीज को काफी ध्यान से करने की आवश्यकता है। तो लीडर ने ये देखना चाहिए। लीडर में ये भी क्वालिटीज का है कि लोगों से जाके मिले कि क्या, क्योंकि मैनेजमेंट को तो लीडर पे भरोसा होता है कि क्या वो सब्जेक्ट लेके आएंगे, तो एक्चुअली वही सब्जेक्ट मैनेजमेंट के सामने रखे जो एक्चुअली कंपनी के लिए फायदे के है, कम्युनिटी के लिए फायदे है। तो लीडरशिप ने ये देखने की काफी आवश्यकता है, ना कि ओनली सिर्फ प्लानिंग में अपना वक्त
निकालने से अच्छा है कि वो ग्राउंड में जाके देख के चीज को समझे ग्राउंड में जाके। तो इससे एक और मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है कि जो हायरिंग प्रोसेस करते हैं, जो एचआर के लोग होते हैं, अगर वो किसी को रिक्रूट कर रहे हों सीएसआर में, तो अदर देन द रिज्यूमे वो लोग को क्या क्या चीजें देखनी चाहिए उस पर्सन पे बिफोर ही स्टेप्स इनटू द जॉब, बिकॉज ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रंग ऑफ द लैडर है। इसकी शुरुआत ही यहाँ से होती है। जब एक इंसान ज्वाइन करता है एज एन एम्प्लॉय इन द सीएसआर डोमेन, हायरिंग मैनेजर्स की, एचआर की एक बहुत इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी होती है। तो उन्हें क्या क्या देखना चाहिए अदर देन रेज्यूमे? रेज्यूमे डेफिनेटली, ये रेज्यूमे जब एक पेपर या 2 पेपर होते हैं जो रेज्यूमे करके रिक्रूट के पास आ जाते हैं, और उसमें वो लोग जो भी लिखते हैं वो तो लिखा हुआ, लेकिन पर्सनल लेवल पे जो एम्प्लॉय है या जो आदमी है जो आपके पास आया है, वो पर्सनल लेवल पे उसके क्या क्या वैल्यू सिस्टम्स है, या उसके हैबिट्स क्या है, या वो क्या विचारों को, क्या आइडियोलॉजी को वो ध्यान में रखता है, क्या उसका एटीट्यूड क्या है, ये सब चीज काफी मायने रखता है, इवन मोर देन दैट रिज्यूमे। सो एचआर ने वो सब चीज देखना चाहिए, और उसके हैबिट्स मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए देता हूँ कि उसके जो माइंडसेट है, माइंडसेट जो हैबिट्स बनाते हैं, हैबिट्स ही उसका प्रोडक्टिविटी बनाती है, और प्रोडक्टिविटी ही आपको गोल को अचीव करती है। आपके सिर्फ रिज्यूमे ठीक है, इसको लेके सिर्फ आगे जाएंगे तो इन फिक्ट में क्या होता है कि आगे जाके बंदा वो सिस्टम में या वो कल्चर में वो बैठ नहीं पाता है, और ऊपर काफी मुश्किल होता है। तो सीएसआर क्योंकि ये पूरी तरह से पीपल मैनेजमेंट का डोमेन है, ये सिस्टम मैनेजमेंट से मोर देन द पीपल मैनेजमेंट कंसर्न होता है, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है रिज्यूमे के बैकअप या रिज्यूमे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही आपने कहा है। देखिए, सीएसआर टाइम्स में हमें बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं। देयर आर मेनी पीपल हु कॉन्टैक्ट अस अबाउट the latest developments that are happening. On the 4th of August in Le Méridien, New Delhi, we are hosting our annual conference on CSR and ESG. तो हम देखते हैं कि काफी सारे ट्रेंड्स आ गए हैं फील्ड में, एंड देयर आर ऑलवेज न्यू ट्रेंड्स, emerging trends. So when we look at emerging trends in ESG, sustainability and CSR, should organizations be preparing for them for the next 5 years, and if so, how? What should they be doing so that they are well prepared? Because trends are dynamic. चेंजेस हर रोज हमें दिख रहे हैं। तो 5 साल के लिए कैसे ऑर्गेनाइजेशंस अगर हम प्रिपेयर करें तो क्या कर सकते हैं वो? ये काफी बड़ा गैप मैडम पूरा सीएसआर डोमेन में आपको दिखने को मिलेगा, कि जैसे 2013 के बाद जो सीएसआर के लॉज, एक्ट, एक्टिविटी ये पूरा शिफ्ट होते जा रहा है, और वो एक ट्रेडिशनल एक डेवलपमेंट सेक्टर एनजीओ से जो भी हायरिंग हो चुका है या जो भी लोग आए वो एनजीओ से शिफ्ट होकर डायरेक्ट सीएसआर में आए। तो इन फैक्ट ऑफ ये जो ट्रेडिंग चेंजेस हो रहा है, वो सो कॉल्ड जो मैन पावर है या जो कोई एंगेजमेंट है, उनके पास वो स्किल सेट नहीं है, जैसे कि बीएसआर के रिपोर्टिंग से है, जैसे कि जीआरआई का है, एसडीजी गोल्स के है, और यहाँ के साथ ही जो एआई में जो चेंजेस हो चुके हैं, वो सब चेंजेस लेके उनके पास वो स्किल सेट की आवश्यकता होना चाहिए और होने भी करनी चाहिए, और उनके पास वो स्किल सेट नहीं होने के कारण इंडस्ट्री को भी सफरिंग हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली जब इंडस्ट्री इस सीएसआर के प्रोफेशनल्स को उनको सभी जगह से ट्रेड किया जाता है, उस ट्रेनिंग के माध्यम से ही वो सब लोग तैयार हो सकते हैं, जैसे कि ईएसजी के बारे में की ट्रेनिंग से है, या जिसके प्रिंसिपल 8 की ट्रेनिंग से, सेक्शन 135 ये किस ट्रेनिंग से। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग और ये ट्रेनिंग की काफ़ी इस टाइम पे उस फेज के लिए काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री के जो टॉप मैनेजमेंट है, दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट द स्पेंडिंग्स, spending, how to spend that entire CSR budget, but that the capacity building वाला thing और जो training वाला thing they are lacking behind.
So I deeply requested that if the industry will prepare the action plan of the 5 year next 5 year, that in terms of the ESG, in terms of the sustainability, in terms of the BSR reporting principle 8, और ये सब उनको ट्रेन होता है तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर इंटायर इंडस्ट्री, इट विल बी हेल्पफुल फॉर द वो जो मैन पावर है, वो जो टीम है या CSR के जो भी लोग हैं, उसको भी फायदा होता है, हो जाएगा, और कंपनी के लिए भी फायदा, क्योंकि चेंजेस बहुत आ रहे हैं। अभी आप सरप्राइजिंग देखिए कि जिस तरह से AI में चेंजेस हो चुके हैं, यू कुड से दैट कि टू मेनी AI टूल्स है, लेकिन जब इंडस्ट्री वो AI की टूल्स को एक्सेप्ट करके आगे नहीं जाएगी और चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो दे विल बी बैक लास्ट 20 साल पहले का ही काम करेंगे, वो जो ट्रेडिशन का काम। अभी चेंजेस हो रहे हैं तो इंडस्ट्री को भी चेंजेस करने की काफ़ी आवश्यकता है, नहीं तो ट्रेडिशनल वर्क ज़्यादा टाइम तक कर नहीं पाएगी, और 5 साल का बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा एक सेटअप, बड़ा एक सिस्टमेटिक प्लान करने की काफ़ी आवश्यकता है। उसमें ये 3-4 जो ये है कंपोनेंट है, उसको मिला के इंडस्ट्री में क्या हो रहा है मैडम, कि जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो दे आर वर्किंग एज आइसोलेशन में, जैसे कि ESG के लोग हैं तो ESG का काम कर रहे हैं, सिर्फ CSR के लोग हैं तो CSR का ही काम कर रहे हैं, BSR के लोग हैं BSR का कर रहे हैं, दे आर नॉट इंटीग्रेटेड विद ईच अदर, और दिस आर द बिगेस्ट लैकुना इन इंटायर इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री सफर हो रही है उसमें, तो उनको जोड़ने की काफी आवश्यकता है, और उनको जोड़ के ही हम लोग आगे कर सकते हैं। Thank you. So it means that integration is what is needed. People Yes, should ma'am. not work in different departments. It should all Department. be a joint effort. And Definitely. also, जो आपने बात कही about AI, I know things, technology, and people generally, initially rather, were viewing AI as a challenge or a threat. But now people have started adapting to it and treating it more as a partner. So, like in various other fields, we have impact measurement. You know, हम सोचते हैं कि कैसे हमारे काम ने क्या रिजल्ट दिया, कैसे किया। ये हमारे व्यूअर्स से ये एक सवाल आया था लास्ट टाइम भी, कि हाउ डू यू मेजर इम्पैक्ट इन CSR एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हमें कैसे मदद करता है इम्पैक्ट असेसमेंट करने में और डिलीवरी के असेसमेंट करने में, कि हमने जो भी इनिशिएटिव्स लिया है उसका क्या असर हुआ है, क्या इम्पैक्ट हुआ है, वो कैसे हम मेजर करते हैं CSR में। अभी CSR के डोमेन में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं, तो वो जब एग्जीक्यूटिव होता है तो पीपल आर फोकसिंग ऑनली एग्जीक्यूशन पार्ट, तो लास्ट इंड यूजर तक वो प्रोडक्ट पहुंचने तक, क्योंकि प्रोग्राम ही प्रोडक्ट है। CSR के भाषा में जो प्रोजेक्ट हम लोग समझते हैं प्रोग्राम, वो इंडस्ट्री के लिए वो प्रोडक्ट है, और लास्ट यूजर्स को जब ये प्रोडक्ट पहुंचता है या जो एक्टिविटी पहुंच जाती है, उसका इम्पैक्ट देखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है उसमें, क्योंकि CSR पर्सपेक्टिव से सिर्फ उसको स्पेंडिंग से देखा जाता है, और बाद में जब वो BSR की रिपोर्टिंग की बात आ जाती है तब उसमें इम्पैक्ट में बात हो जाती है, या उसको चीज़ को क्या इनपुट आउटपुट में बात होता है। जब देखने के लिए मोस्ट प्रोबेबली जब मैं AI के सेटअप का बात हमेशा करता हूँ, ये इसमें CSR में हम लोगों को एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि जो चीज़ चेंजेस हो रहे हैं, अभी सिर्फ एक ट्रेडिशनली चीज़ को देखेंगे तो वो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि सच में क्या होना चाहिए। तो हम लोगों को जैसे कि गोडेरा करके वेबसाइट्स है, AI फिस्टा करके है, अलग अलग टूल्स है कि जो टूल्स को हम लोगों को एक्चुअली अडॉप्ट करना चाहिए और CSR में उसको इनबिल्ड करना चाहिए, ताकि हम लोग इस चीज़ को लेके अभी हो रहा है कि एक्चुअली ग्राउंड में या सिस्टम में कि ये प्रोसीजर 20-20 साल से जो ट्रेडिशनली कल्चरली प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको ऐसे ही रख दिया है। मैनेजमेंट का मुझे रिक्वेस्ट है, या मैनेजमेंट को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी चेंजेस हो चुके हैं वो हम लोग अडॉप्ट करें AI से,
और ये ऐसे कि टूल से लेके मेजरमेंट को हम लोग मेजर अपने इम्पैक्ट को मेजर करने के लिए उसको एक्सेप्ट करें। मैन्युअली करना बहुत मुश्किल होता है, वो हो भी नहीं होता भी नहीं है, और जो होता है वो उसको ठीक तरह से इम्पैक्ट देखता नहीं। और जो एनजीओज यहाँ पे आती है, या मोस्ट प्रोबेबली एनजीओज भी होते हैं कि जो प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन आपके साथ सिर्फ फोटो और रिपोर्ट भेजते हैं, ये पे इम्पैक्ट असेसमेंट की दिशा में सोचते नहीं है। और जब इम्पैक्ट असेसमेंट, क्योंकि कॉर्पोरेट सोचता है इम्पैक्ट असेसमेंट का, क्योंकि इसलिए सोचता है कि जो स्टेक होल्डर्स है, जो इन्वेस्टमेंट देखता है कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। जब हमने 4 करोड़ हमने इन्वेस्टमेंट किया, तो हमारा एसओआर क्या है, हमारा एसओआर में कितना आ चुका है। तो ये सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात आ जाती है, तब उसमें इम्पैक्ट को दिखाने की आवश्यकता होती है, और दिखाना ही पड़ता है और दिखाना ही चाहिए। उसके लिए हम चाहते हैं कि हर एक मैनेजमेंट इंडस्ट्री के जो भी कॉर्पोरेट लीडर्स है, उसको एक्सेप्ट करे नए टूल्स को, और उसको इनबिल्ड करने। क्योंकि क्या हो रहा है कि उसके लिए पैसा लग रहा है, बजट लगता है, और बजट लगता है तो सो मेनी क्वेश्चंस हैपन एंड स्टार्टेड टू अप्रूव दैट प्रोजेक्ट, या दे बी सॉफ्टवेयर या जो भी है। लेकिन हर एक चीज़ का सॉफ्टवेयर है। और मैंने कुछ हमारे कुछ मैनेजमेंट के कुछ दोस्त भी है पनवे, इसमें पेन में या पुणे में कुछ काफ़ी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज है कि जो उसको सपोर्ट देती है करते हुए। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ का जो प्रोजेक्ट है, उसमें भी काफ़ी सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, वाटर कंजर्वेशन में भी है। लेकिन हमको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, हमको लेना ही चाहिए, एक्सेप्ट करके इम्पैक्ट असेसमेंट में हमको करना चाहिए। मैन्युअली एक्सेल में हम लोग जो भी लोग हैं, या कितने तक काम कर पाएंगे और कब तक करेंगे, उसमें काफ़ी टाइम का कंज्यूमिंग होता है। तो सब मेरा रिक्वेस्ट है कि हम सॉफ्टवेयर का मदद लेके हमारे इम्पैक्ट असेसमेंट या इम्पैक्ट देखना चाहिए मैडम। तो ये हो गई टेक्नोलॉजी की बात। अब दूसरा मेरा ये सवाल है कि विद द इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी we also need to upgrade our skills, right? Yes. So people have to be open to learning, open to trying out new skills, new things, so adaptation. According to you, when, let us say, you would have joined this domain many years back, the kind of skills that you carried, and for people who are joining now, what is the essential difference in the skill sets? मतलब कितना हमें उसमें different types of things दिख रहे हैं जो हमें imbibe करना चाहिए। डेफिनेटली कि कॉर्पोरेट की जो काम करने की तरीके है या पद्धति है, वो डिफरेंट है, और प्रोफेशनली है, वो सिस्टमेटिक है, वो इम्पैक्ट्स, उसका आउटपुट इम्पैक्ट इस तरह से वो सोचते हैं। लेकिन जो मैन पावर इसमें एंगेज हो रही है सीएसआर में, उनको न्यू चीज़ के अडोप्शन क्या करने की काफ़ी आवश्यकता है। उनको अलग अलग फॉरेन लैंग्वेज की सीखने की आवश्यकता है, उनको भाषा को इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, उनको अपना प्रेजेंटेशन स्किल को इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, उनको इंग्लिश प्रोपर्ली चेंज करने की आवश्यकता है। हर चीज़ में उनका वर्क एटिकेट्स के बारे में उनको काफ़ी चेंजेस करने की आवश्यकता है। तो ये सब चेंजेस जब मैन पावर या जो लोग एंगेज हो रहे हैं उनको, और उसको देखने की आवश्यकता है कि क्या सच में मेरे में वो जो स्किल्स सेट हो रहा है क्या, या आ चुका है क्या। और तो ओपन टू लर्न की अलग अलग चीज़, जहाँ भी आपको मिल रहा है टाइम, वहाँ पे आपको लर्निंग करके आगे जाने की आवश्यकता है। जो लॉज आ चुके हैं, या जो लॉज है अभी, जो बीएसआर के लॉज है, बीएसआर के जो रूल्स रेगुलेशंस है, 135 सेक्शन 1 का जो है, शेड्यूल 7 है, वो बाय हार्ट करके वो सीखने की आवश्यकता काफ़ी है। क्योंकि इमोशंस के साथ हम लोग जुड़ जाते हैं डेवलपमेंट सेक्टर में, लेकिन जब कॉर्पोरेट की बात आती है तो उसमें आपको ये सब चीज़ की आवश्यकता काफ़ी हो जाती है। पढ़ने की काफ़ी आवश्यकता होती है, सिर्फ काम नहीं पढ़ना, जैसे CSR 1 क्या है, CSR 2 क्या है, ये पढ़ने की आवश्यकता है। स्ट्रक्चर क्या है, रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर कैसा है, वो पढ़ने की चाहिए। जो भी चेंजेस आज हो रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट्स में, जो अमेंडमेंट्स बताई जाती है, वो क्या चेंजेस है। और क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जब बोर्ड है या मैनेजमेंट है, वो डिपेंड करता है कि जो टीम के जो लीडर है उसके पास कितना उस चीज़ के बारे में नॉलेज है। क्योंकि बाद में जो मैनेजमेंट जिम्मेदार होता है पेनल्टीज के लिए, और वो रेपुटेशन का बात आता है इंडस्ट्री का।
तो इसके लिए वो भी बंदे ने काफ़ी पढ़ने की आवश्यकता है ताकि चीज़ को समझे, और जहाँ पे गलत है या जहाँ पे सीएसआर लॉज में नहीं आ रहा है या जहाँ पे वो एक्टिविटी गलत है, समझो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग इंडस्ट्री को प्रेशराइज करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं, ये करना चाहिए या करने की आवश्यकता है, तो सीएसआर में जब नहीं आता है तो हमको सीएसआर लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैनेजमेंट को उनको कॉन्स और प्रोन्स पूरा समझा के जो चीज़ नहीं होती है, लॉ में नहीं बैठता, वो नहीं करे, और जो बैठती है वो तो आगे जाके कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही क्रुशल चीज़ होती है ताकि वो पूरा सिस्टम को रन करता है, क्योंकि वही बंदा होता है या वही पावर होता है कि उसको लर्न करने की काफ़ी आवश्यकता है। ब्लाइंडली कुछ भी डिसीजन आप लेना नहीं, क्योंकि पूरा लीगल चीज है, सीएसआर पूरा लीगल एप्लीकेशन है इंडस्ट्री का। सो सीखना, पढ़ना, हर चीज को अडॉप्ट करना और ओपन टू लर्न, ये रहने की काफी आवश्यकता होती है। थैंक यू। सो एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपने यहाँ हमें बताई है कि यू नो अ पर्सन हैज़ टू हैव अ लॉट ऑफ इंटेग्रिटी along with work ethics, because this is such a field where you need work ethics. You need not just be a people pleaser, you need not just be listening to your superiors. You have to assert yourself if you feel that something is not quite in order, and then explain, not only assert but explain कि ये क्यों हमें ये नहीं हम कर नहीं सकते करना हैं चाहिए, और नहीं क्या। कर सकते। तो एथिक्स की बहुत बड़ी ज़रूरत भी है इस फील्ड में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़, you know, with the considerable experience that you have of so many years, you must have seen so many challenges, so many developments. So according to you, what kind of challenges in the CSR ecosystem excite you today? And can you name a few and also tell us why? Definitely, that was the biggest challenge in CSR. It is a data management. So we started so many program, activity, projects, so many things, so many beautiful things. But the data, management of the data is quite difficult and different. And because of the data, we could take the various approval. But this is a biggest challenge. Second challenge, the selection of NGOs. जो एनजीओस काम करती है वो जेन्युइन और जो काम करने वाली एनजीओस को सिलेक्ट करना, इट वाज द बिगेस्ट चैलेंज बिकॉज वी हैव सीन दैट सो मेनी अनफॉर्चुनेटली थिंग्स इज बीन हैपनिंग इन द फील्ड. So this was the biggest challenge we have seen. And also the impact assessment, whatever program we have been doing in ground, it is also one of the challenge to how to measure the things. These are the challenge in the system wise, we could say. In program wise, we could say that there is a biggest gap हमको करना चाहिए था, लेकिन वो करने की आवश्यकता भी है. That is the major thing is the education development वाला project. In Maharashtra, in Bangladesh, Pakistan, in Asian country, you can see that the condition of the schools, government school, is pathetic. And this was the biggest challenge of the CSR, because we have the budget, we have the professionals, but we need to go in this kind of the project. It is a educational development about the upgradation of the schools of government. These are challenges we have been seeing in the CSR domain. And in part of this entire things, if we could overcome this kind of the challenges, it would be our project will be reach more and more needy and more vulnerable community. These are the challenges we have been facing, and we have seen that the management is so much eager to spend the amount. These are so much management so much interested to spend the amount in the stipulated time of March 31st. But the finding of the proper NGO, finding of the proper program, finding of the proper beneficiaries, it is very difficult. It's very difficult, and this was the challenge, biggest challenge. Thank you. Okay. So very interesting. You have told us so many things which has made us think about this entire CSR landscape. You are a very respected professional in CSR. People speak to you, you are invited on various forums to address people. I want to understand from you
people must also be coming to you other than your company, people whom you know and who are aware of your work. They must be coming to you for some advice regarding the CSR field. Can you tell us some of the important questions that people have, and basically the CSR professionals, and what advice do they normally come to you for? वो आपसे क्या सीखना Yeah, चाहते Shasha. हैं? What या happened, क्या madam? बोलना चाहते हैं? Because of our strongest and robust network of Tata Institute of Social Sciences, our alumni, our friends are appointed various company, various industries. They know that I am in the field of the CSR. So they are trying to communicate with me कि उनका प्रोग्राम को how to they are design the program. CSR के पॉलिसी के बारे में पूछते हैं, उनके इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में पूछते हैं, उनकी रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर के बारे में पूछते हैं, उनको सिलेक्शन ऑफ द appropriate and appropriate staff, उनके बारे में they are asking so many questions. So in this industry, people are so much concerned about the procedures and the operation level. They might be prepare some of the policies. They in boardroom they can easily form the policies, but that execution part and the execution of that policy, it is a very crucial. So people are very much concerned. They are very much dependent, and they are also eager to learn कि कैसा काम कैसा करे जब इंडस्ट्री को खड़ा करना है, लेकिन ये चीज को कैसे देखे. इट इज टोटली पीपल्स मैनेजमेंट. सो हमारे जो लोग हैं या हमारे जो दोस्त है, हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, ये काफी चीज पूछते हैं. आई वाज सो सरप्राइज कि हम उनको बता देते हैं हर एक लीगल कॉन्सेप्ट, लीगल ऑब्लिगेशंस है, उसके बारे में हम उनको कंटिन्यू बताते रहते हैं. उनके जो लॉज में जो पेनल्टीज वाला कॉलम है, बीएसआर की रिपोर्टिंग, जीआरए की रिपोर्टिंग से, उसके बारे में हम उनको बताते रहते हैं. और ये काफी बड़ा गैप है कि इंडस्ट्री का, कि जो इस तरह के कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं है, लोगों बताने वाले लोग नहीं है, और जो टीम है एक्चुअली काम कर रहे हैं वो भी नहीं जान पा रहे कि एक्चुअली क्या होता है. तो इस तरह से हम काफी इंडस्ट्रीज के लोगों को, हमारे दोस्त है इसलिए हम वो बता पाते हैं उनको पूरे सीएसआर के डोमेन का. और आपके मुताबिक ऐसा कौन सा एक एरिया अभी भी है, काफी सारे एरियाज होंगे, बट एक कोई ऐसा मेजर एरिया सीएसआर स्पेस में जहाँ पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए? आपने बहुत कुछ बताया है, बट ऐसा और कोई आपको लगता है कोई ऐसी जगह है जो छूट रही है, लोग वहाँ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जिसकी वजह से काम सफर हो रहा है, हमारा सीएसआर का जो डेवलपमेंट है वो सफर हो रहा है? तो कोई ऐसी एक मेजर स्पेस जो आप बता सकते हैं जहां हमें और अधिक काम करने की जरूरत है? ये इन टर्म्स ऑफ ज्यादा सीएसआर को डीप में हम लोग 2-3 पार्ट में देखते हैं उस सब चीज को. वन थिंग इज अ प्रोग्राम वाइज, कि प्रोग्राम में क्या सीएसआर के लोगों को देखना चाहिए, और दूसरा है कि सिस्टम वाइज, सिस्टम में क्या देखना चाहिए. प्रोग्राम वाइज का हम पहले बात करेंगे मैडम. जो सेक्शन 135 शेड्यूल 7 है, उसके अंडर में 12 अलग अलग एक्टिविटी को हम लोग प्लान करके एक्टिविटी करते हैं. दिस वाज द थिंग, इट इज एज पर द मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए. लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली जो एरिया हमारा छूट जाता है, जो है उसका है वुमन एम्पावरमेंट, कि जहाँ पे लोग औरतों के साथ जो अलग अलग प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना, अलग अलग प्रोग्राम को डिज़ाइन करना, उसके एम्पावरमेंट के लिए प्रोग्राम के लिए बात करना, उसके इकोनॉमिक, मोस्ट प्रोबेबली उन लोगों के इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी के लिए वुमेन्स का, क्योंकि एक औरत के पास जब पैसा आ जाता है, बिजनेस खड़ा हो जाता है या प्रोग्राम आ जाता है, जो उसके पास घर में पैसा आता है, उसका फैमिली के पास पैसा आता है. तो हमको इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी फॉर द वुमेन्स, ये बड़ा एक गैप है कि जो हम लोगों को करने की काफ़ी आवश्यकता है इन सीएसआर डोमेन के हिसाब से और इंडस्ट्री के भी हिसाब से. इवन दो हम लोग अलग प्रोजेक्ट में जाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि कितने साल तक हम औरतों को उस तरह से रखेंगे या रखेंगे. जब हम सीएसआर में है और हमारे पास जब बिग बजट है, तो why should we not spend almost 50% of CSR budget on women empowerment, है ना? तो ये बहुत बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज whatever we will design वो सब लिस्ट हो जाते हैं एक्टिविटी के, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली औरतों के विकास के बारे में, प्रोजेक्ट को मोस्ट प्रोबेबली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में हमको काम करने की बहुत आवश्यकता है. क्योंकि पैसा आएगा तो आदमी को
अलग अलग ग्रोथ आ सकते हैं। हम मेडिकल पे भी औरतों के हेल्थ पे काम कर सकते हैं, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ओपिनियन है कि उनके हाथ में पैसा आना चाहिए। जब पैसा आएगा तो उसके हाथ में डिसीजन लेने की पावर आ जाए, डिसीजन पावर आ जाती है तो वो आगे बढ़ सकते हैं, वो काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये मेरा काफ़ी उसमें एक बहुत इंटरेस्ट एरिया है कि जो हम सोचते हैं इन सिस्टम वाइज हमको CSR में मैं हमेशा आई विल लव टू explain that we need to adapt changes, we need to adapt that the EI, we need to adopt the next level of the changes। ये ट्रेडिशनली कितने साल हम प्रोजेक्ट को करते रहेंगे कि चेंजेस हो रही है और उसको समझना। और सेकंड थर्ड थिंग आई विल लव टू नेटवर्क द पीपल कि जो एनजीओज है या जो ऑर्गेनाइजेशन, जो कॉर्पोरेट है, जो गवर्नमेंट है, उनको सबको मिलना है और नेटवर्क से ही हम लोग काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट के साथ हम CSR को बहुत ज़्यादा जोड़ने की भी बात करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं। उस प्रोजेक्ट को कॉर्पोरेट और CSR या कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट को लेके जब मिल के करेंगे तो उनका बजट इकट्ठा करके हम अच्छी तरह से लोगों के अंदर इम्पैक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट के साथ जुड़ना बहुत बड़ा काम है कि जो CSR की टीम ने लोगों ने करना चाहिए। ये मैं काफ़ी स्ट्रांगली रखूँगा और रखना चाहूँगा क्योंकि गवर्नमेंट के सपोर्ट के सिवा आप कुछ नहीं कर पाएंगे और इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट के साथ ही प्लान करना चाहिए। थैंक यू। करेक्ट। सो यू हैव रेज्ड सम वेरी पर्टिनेंट पॉइंट्स हियर। जो आपने बात कही गवर्नमेंट के साथ काम करने की, तो द सेंस ऑफ पार्टनरशिप हैज टू बी देयर। It is not the role of one particular corporate or one particular department. Even interdepartmental alliance has to be there. On the outer front, we have to have a strong partnership with the government for us or any initiative to become successful. Definitely. And what you also spoke about women empowerment is again a very pertinent point and very close to my heart, being a woman myself. And I'm sure that much needs to be done and is being done on that front. We have taken a whole wealth of information from this interaction today. Is there anything else you feel which you need to tell us as a closing remark, or you feel that we have broadly and largely covered everything? We cover so many things. We cover the legal aspect of the CSR. We cover the executive aspect of the CSR. We cover the most probably activity-wise also. We have covered. We have suggested so many. We have provided suggestions also for the industry, for the board also. So we have almost covered. But in terms of the, I would love to add one thing that the person and the people who are engaged with the entire CSR operation, we need to train them. In the broader aspect, we need to support them, we need to guide them, and we have seen and we have identified that there is no platform across the India that they will give they can learn from each other. So if you could take some initiative to set up any kind of the platform for the CSR professionals that they can come there, they can learn from each other. So I would suggest you, I will asking for guidance from you also, that if you could take initiative and set up the one platform for the learning for the CSR perspective. Thank you, madam. Yes, we have undertaken a lot of initiatives. If people visit our website, they will see we have a lot of initiatives. We have NGOs, their partnerships. We have CSR, Global Sustainability Council, which we have set up. So I urge all the viewers to log into our website and check out all the initiatives that we are doing and be a part of it, participate with us, so that all of us can jointly create a successful CSR movement. Before closing this very valuable podcast, my question is on the lighter side, Mr. Kamble. We have spoken a lot about your profession, your work, etc. I would like to ask you, how do you see yourself in the next 5 years as a professional and also on a personal level? So what are your expectations from yourself as a professional
and also on the personal level for the next Definitely, 5 years? in terms of my personal and professional view, I have seen, I have identified so many. I have seen also. I have worked with the different kind of the industry, and I thought that my experience, my value, my understanding, my knowledge will definitely help the industry. So I was looking to that if I could add more value to the industry for my this kind of domain, this kind of information, it would be better to me, and it will be benefited for the industry, because I have seen because that the changing trade of CSR is quite different, and industry need some kind of expertise people, those who are come from that grassroots level, just like me. So I could definitely add more value for that industry in terms of legal, in terms of execution, in terms of the operation, in terms of the procedures. So I see myself as the senior level of the person to help industry, to add my value, to add the enhance their productivity, their programs, their activity. So this is I see myself in personal level to as a senior level of the position in industry for the setup of their CSR department, set up their policies, set up their programs. This is this is my expectation from myself. In personal level, I have already set up so many groups, already networking so many people to helping in CSR. Also, I am the life coach. I am doing so many free wala program for the people who are interested in the health, those are interested in the miracle morning wala program, that the setup of the morning rituals, that's all I already engage. And so the productivity part, because of that setup of my personal initiative, I have quite productive to engage with our CSR, and this is my personal thing. So I request to industry that if they could engage with me for their program, so I will be love to connect with them for their projects. So Thank we you. will also mention your contact details for people who would want to reach out to you for their various initiatives, advice to set up various CSR departments, because your value and the wealth of experience that you carry is something which will help others, and that Definitely. will be done in a very good way. So we will definitely share the contact details on this podcast so that people can reach out to you. And this has been a very interesting and enlightening session. And I hope to do more such podcasts with you in the future. If readers have any questions, the viewers have any questions, they can reach out to Mr. Vijay Kamble directly at the contact details, which we will share with you after this podcast is aired. So do reach out. And before we close, I thank you for your time. I thank you for the wealth of knowledge that you have shared with us. And I also urge you and all the viewers to join us in the 13th National CSR and ESG Summit and Awards 2026, which we are hosting on the 4th of August at Le Méridien Hotel, New Delhi. The details of which you can log in and check on our website. And do keep abreast with all the initiatives that we are doing from time to time. We want you to reach out to us, to join us in whatever way you want to, either by way of podcasts, articles, participation in events, because at CSR Times, this is what we truly value. We value the engagement of our viewers and our audience. So thank you very much, Mr. Vijay Kamble, for taking out time and coming on this show a second time, Leading with Impact. Thank you Thank very you, ma'am. much. Thank you. Have a Thank you. great day ahead. Thank you, Thank sir. you. Thank you.